Good evening, students. We have done the chapter gravitation and chemical reaction and equations of the science part first. Science part first के gravitation and chemical equation and reaction के बारे में हमने पहले वाली वीडियो में जानकारी ली है. Also, we have completed the first chapter of science part 2, that is evolution and heredity. आज हम फिर सेकेंड पार्ट कंटिन्यू करने वाले हैं और सेकेंड चैप्टर ऑफ द सेकेंड पार्ट साइंस पार्ट 2, that is life processes in living organism. What in by life processes? Life process क्या होता है? How does the life process carry in human being? Which is the essential factor for carrying out the life processes? Life process carry out होने के लिए कौन से factors की जरूरत है? Life process क्या है? Those processes are important. Those processes are essential for सर्वाइवल ऑफ लिविंग थिंग. लिविंग थिंग सर्वाइवल होने के लिए जो प्रोसेसेस इंपॉर्टेंस है वी कॉल देम लाइफ प्रोसेसेस. These are different types of processes necessary in human being and they continually functionable in their body. For example, respiration, excretion, digestion, circulation, coordination, then reproduction, movement. These are the different types of life processes simultaneously or continually carry the function in human being. जो लाइफ प्रोसेस हम इस चैप्टर में रेस्पिरेशन एंड सेल डिवीजन के बारे में डिटेल्स में जानकारी लेने वाले हैं. रेस्पिरेशन व्हाट इज मीन बाय रेस्पिरेशन. रेस्पिरेशन क्या होता है? Whatever the food we intake daily, जो हम फूड डेली इंटेक करते हैं, that food is consumed, that food is utilized, that food is utilized and release the energy. वो फूड कंज्यूम होता है, assimilate होता है और after assimilation energy is released out from that food. वो फूड after consuming, after assimilating energy release होता है उस फूड में से, that is called respiration. Actually in our science language, very simple meaning of respiration: intake something and expel, means intake something and release out something, means exchange of gases takes place in the respiration. Respiration में क्या होता है? Gases exchange होते हैं. We call them another word, that is diffusion. Diffusion is also exchange of gases. And second जो life process है, थर्ड चैप्टर वाला जो लाइफ प्रोसेस का, दैट इज इन दैट चैप्टर रिप्रोडक्शन. देयर इज वेरी डिटेल्स इंफॉर्मेशन हैज गिवन इन दैट चैप्टर अबाउट रिप्रोडक्शन. आज हम फर्स्ट पार्ट कंटिन्यू करने वाले, दैट इज लाइफ प्रोसेसेस एंड वी आर गोइंग टू लर्न इन डिटेल अबाउट द रेस्पिरेशन एंड सेल डिवीजन. Respiration, initially this chapter belongs to 5 marks with option. What is the name of the chapter? That is the life processes in living organism. Life processes in living organism. Organism part first. रिप्रोडक्शन क्या होता है एंड रेस्पिरेशन क्या होता है? रिप्रोडक्शन के बारे में हम पार्ट 2 में जानकारी लेने वाले हैं and we are going to detail about study about respiration here in this chapter. part first में respiration and cell division के बारे में जानकारी लेने वाले. पहला respiration क्या होता है? whatever the food we daily intake, जो फूड हम कंज्यूम करते हैं, that food is utilized, that food is broken down and release the energy and obtain the energy from that assimilated food. जो फूड हम एसिमिलेट करते हैं, जो फूड हम कंज्यूम करते हैं, जो फूड हम ब्रोकन डाउन करते हैं, उसी फूड में से एनर्जी रिलीज होता है. जो फूड हम डेली कंज्यूम करते हैं, दैट फूड कंटेन्स सम इसेंशियल फैक्टर्स. उस फूड में सम इंपॉर्टेंट कंस्टिट्यूट्स होते हैं. द इंपॉर्टेंट कंस्टिट्यूट्स एंड इसेंशियल कंस्टिट्यूट्स इन द फूड इज कॉल्ड एज न्यूट्रिएंट्स. Important or essential factors, essential constitutes in the food is called as nutrients. जो फूड में इंपॉर्टेंट होते हैं, जो फैक्टर्स इसेंशियल होते हैं, नेसेसरी, उसको न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं. देयर आर
3 to 4 types of nutrients, mostly major nutrients. For example, carbohydrates, second one protein, third one fats, fourth one water, fifth one minerals, vitamins, etc. But among these nutrients, carbohydrate, fats, and proteins are the major source of energy. Again, अकॉर्डिंग टू फंक्शन, फंक्शन कौन सा न्यूट्रिएंट कौन सा फंक्शन कैरी करता है, अकॉर्डिंग टू फंक्शन न्यूट्रिएंट्स आर अगेन क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स. न्यूट्रिएंट्स कौन से फंक्शन कैरी आउट करते हैं, वो फंक्शन के अनुसार उसके फिर देयर आर 3 मेन टाइप्स, 3 मेन टाइप्स. पहला दैट इज एनर्जी गिविंग न्यूट्रिएंट्स, energy giving nutrients, ENERGYING, energy giving nutrients. Energy giving nutrients means these nutrients, after consumption of these nutrients we get energy. Actually सब nutrients energy provide करते हैं, मगर ज्यादा energy provide करने वाले जो nutrients है, example that is carbohydrates and fats. These are very important nutrients. These are energy giving nutrients. Second, that is body building nutrient. Second part of nutrient according to function, body building nutrients. Body building nutrients जो अपने बॉडी बिल्ड करने के लिए, अपना हेल्थ स्ट्रॉन्ग होने के लिए जो इंपॉर्टेंस न्यूट्रिएंट्स है उसको बॉडी बिल्डिंग न्यूट्रिएंट्स कहते हैं. These nutrients, example of these nutrients are proteins. The sources, there are different animal and plant sources of proteins, mostly vegetable, pulses, meat, fishes are the sources of proteins. And third वाला जो nutrients है according to function, that is regulating and maintaining nutrients. Sorry, MAINTAINING. Regulating and maintaining nutrients, vitamins and minerals are the examples of these nutrients. According to function, nutrients के 3 टाइप्स है. पहला एनर्जी गिविंग न्यूट्रिएंट्स, एग्जांपल है इसका कार्बोहाइड्रेट एंड फैट्स. सेकेंड वाला जो न्यूट्रिएंट्स है वो बॉडी बिल्डिंग न्यूट्रिएंट्स है. द एग्जांपल ऑफ दिस न्यूट्रिएंट्स प्रोटीन्स. एंड रेगुलेटिंग एंड मेंटेनिंग एंड प्रोटेक्टिव जो न्यूट्रिएंट्स है देयर आर विटामिन्स एंड मिनरल्स. These are the types of nutrients according to function. And what is meant by nutrient? Nutrients क्या होता है? Essential factors, essential component in the food is called as nutrients. We know these are the sources of energy. Only nutrients are sufficient for producing the energy in our body? No. We require oxygen. Oxygen is also important factor for producing the energy. Along with nutrients, oxygen is also essential. Also, oxygen which important है energy producing के लिए. But therefore, we intake the oxygen. Oxygen and these nutrients circulate throughout the body by circulatory system. Means through the blood, it carry out all over the cell. But therefore, in our body, there are 2 main types of respiration. अपने बॉडी में 2 टाइप्स के रेस्पिरेशन कैरी होते हैं. पहला रेस्पिरेशन जो है दैट इज एरोबिक रेस्पिरेशन एंड सेकेंड टाइप ऑफ रेस्पिरेशन दैट इज कॉल्ड इरेगुलर अनएरोबिक रेस्पिरेशन. अकॉर्डिंग टू टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन, there are 2 types of respiration according to presence or absence of oxygen. What is by respiration? Release out the energy from assimilated food is called as respiration. Respiration क्या होता है? जो फूड हम कंज्यूम करते हैं, एसिमिलेट करते हैं, उसके एसिमिलेशन के बाद जो एनर्जी रिलीज होता है दैट इज कॉल्ड रेस्पिरेशन. एनर्जी रिलीज होने के लिए we intake the food
फूड में जो इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है वी कॉल देम न्यूट्रिएंट्स. नॉट ओनली न्यूट्रिएंट्स, along with nutrients we require oxygen for producing the energy. एनर्जी प्रोड्यूसिंग करने के लिए बॉडी में न्यूट्रिएंट्स के साथ ऑक्सीजन भी इंपॉर्टेंस है. There are two types of respiration according to oxygen. First one, that is aerobic respiration. Aerobic respiration, and second one, that is anaerobic respiration. What is aerobic respiration? Those respiration carry along with oxygen. जिस respiration में ऑक्सीजन साथ प्रेजेंट होते हैं, that is called aerobic respiration. And the respiration doesn't require the oxygen, or the respiration carry out without oxygen, जिसमें ऑक्सीजन साथ नहीं होते, that is anaerobic respiration. If we saw the production of energy in aerobic respiration and anaerobic respiration, जब आपने एरोबिक एंड anaerobic respiration में कितने एटीपी मॉलिक्यूल्स, एनर्जी मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस होते हैं, जो कैलकुलेट किया, तो यू नोटिस दैट आपके समझ में आएगा, इन एरोबिक रेस्पिरेशन वी गेट 38 मॉलिक्यूल्स, एटीपी मॉलिक्यूल्स, 38 एटीपी मॉलिक्यूल्स एरोबिक रेस्पिरेशन में मिलते हैं. ATP is the source of energy or energy molecule. We also call it energy molecule. And in anaerobic respiration, we get only 2 ATP molecules. Only 2 ATP molecules हमको मिलते हैं. कहाँ पे? anaerobic respiration में. अभी आपके समझ में आएगा, aerobic respiration provides or we obtain 38 ATP molecules from the aerobic respiration. Therefore, living thing कौन सा respiration परफॉर्म करेगा, कैरी करेगा मोस्टली aerobic respiration. Why? Because it provides more ATP molecules than anaerobic. Anaerobic में only 2 ATP molecules मिलते हैं और aerobic में 38 ATP molecules कैरी होते हैं. Therefore, living things mostly prefer the aerobic respiration. लिविंग थिंग कौन सा रेस्पिरेशन परफॉर्म करता है ज्यादा, एरोबिक रेस्पिरेशन ज्यादा परफॉर्म करता है, क्योंकि उस एरोबिक रेस्पिरेशन में 38 एटीपी मॉलिक्यूल्स मिलते हैं. इनिशियली आई टोल्ड यू, मैंने पहले ही कहा है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स आर द इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी. फूड में जो न्यूट्रिएंट्स रहते हैं, वो न्यूट्रिएंट्स में ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड करने वाला न्यूट्रिएंट्स कौन सा है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट्स. बट फर्स्ट, carbohydrate is broken down into glucose. Carbohydrate nothing but glucose. Carbohydrate means glucose. पहले अपने बॉडी में वो ग्लूकोज क्या होता है, ब्रेकिंग डाउन होता है. The process in which glucose is broken down is called as glycolysis. ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस जो है, वो ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस 3 स्टेप्स में, यानी कि ब्रेकिंग डाउन ऑफ फूड, वो 3 स्टेप्स में कैरी होता है. पहला ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस है, सेकेंड वाला क्रेब्स साइकिल है, एंड थर्ड वाला दैट इज टीसीए, ईटीसी. ईटीसी मींस इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन. अपने बॉडी में जो सेल होता है, सेल में सेल्यूलर रेस्पिरेशन कैरी होता है. सेल्यूलर रेस्पिरेशन के 2 टाइप्स है, एक एरोबिक रेस्पिरेशन है और सेकेंड वाला अनएरोबिक रेस्पिरेशन है. एरोबिक रेस्पिरेशन ऑक्सीजन के साथ कैरी होता है. we get 38 ATP molecules from aerobic respiration. Anaerobic respiration विदाउट ऑक्सीजन होता है और यहाँ पे ओनली 2 ATP मॉलिक्यूल्स मिलता है. जब अपने सेल में जब फूड ऑक्सीडाइज होता है, जब फूड ब्रोकन डाउन होता है, तो उसमें वो सेलुलर जो स्टेप्स है फूड ब्रोकन डाउन होने के, दैट प्रोसेस कैरी आउट बाय 3 स्टेप्स. वो ग्लूकोज ब्रोकन डाउन की जो प्रोसेस है और सेल्यूलर ऑक्सीडेशन की जो प्रोसेस है, फूड ऑक्सीडेट होने की जो प्रोसेस, वो 3 स्टेप्स में कैरी होता है. उसमें पहला जो स्टेप है वो है ग्लाइकोलिसिस. ग्लाइकोलिसिस. सेकेंड स्टेप दैट इज क्रेब्स साइकिल, और इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज TC, tricarboxylic cycle, tricarboxylic acidic cycle, TCA. एंड थर्ड वाला जो टाइप है दैट इज ETC, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन. क्रेब्स साइकिल इज आल्सो कॉल्ड एज
ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। देखो अपने बॉडी में सेल्यूलर रेस्पिरेशन कैरी होता है। सेल्यूलर रेस्पिरेशन के दो टाइप से, एरोबिक अनएरोबिक है। एरोबिक रेस्पिरेशन में फूड ऑक्सीडाइज होता है और फूड ऑक्सीडेशन स्टेप बाय स्टेप होता है। देयर आर 3 स्टेप्स थ्रू व्हिच फूड ऑक्सीडाइज। पहला स्टेप है ग्लाइकोलिसिस, सेकंड वाला क्रेब्स साइकिल और थर्ड वाला जो स्टेप है दैट इज ईटीसी। इन 3 स्टेप में से जो फूड हम कंज्यूम करते हैं वो फूड क्या होता है, ऑक्सीडाइज होता है। वी आर गोइंग टू लर्न इन डिटेल द फर्स्ट स्टेप दैट इज ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस पहले मैंने बोला है एनर्जी गिविंग न्यूट्रिएंट जो है वो पहला जो एनर्जी गिविंग न्यूट्रिएंट दैट इज कार्बोहाइड्रेट। देखो कार्बोहाइड्रेट, सपोज मैंने यहां पे राइट किया कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट इज द सोर्स ऑफ एनर्जी। वी गेट द एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ, अपने हमें जो एनर्जी फॉर्म मिलता है वो एटीपी के फॉर्म में मिलता है। सेकेंड वाला NADH2 के फॉर्म में मिलता है। थर्ड वाला FADH2, फोर्थ वाला CO2 कार्बन डाइऑक्साइड एंड लास्ट वाला दैट इज वाटर। दीज आर द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। देखो एटीपी एडेनिसिन ट्राइफॉस्फेट, सेकेंड NADH2 निकोटिनामाइड एडेनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड, FADH2 फ्लाविन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, CO2 you already know, H2O you already know। CO2 क्या बिलोंग करता है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड H2O फॉर वाटर। We know carbohydrate is the source of energy and carbohydrate is nothing but glucose। Therefore this glucose is broken down. This glucose is broken down into different forms. The process in which the glucose is broken down is called as glycolysis. This process. Now, what exactly happen? Carbohydrate, nothing but glucose. Glucose is broken down into different types of energy molecules. यहाँ पे क्या होता है? In this glycolysis process, we get 2 molecules of pyruvic acid. PA, 2PA. 2PA means pyruvic acid. We get 2 molecules of pyruvic acid. Also we get 2 molecules of NADH2. यहाँ पे क्या मिलता है? NADH2 भी मिलता है. Again we get carbon dioxide here. We get water. Only we do not get FADH2 in the process of glycolysis. Glycolysis process में क्या नहीं मिलता? FADH2 नहीं मिलता। 2 molecules of pyruvic acid मिलता है, NADH2 मिलता है 2 molecules, कार्बन डाइऑक्साइड के 2 molecules, वाटर के 2 molecules मिलता है। And this pyruvic acid is again converted into acetyl coenzyme. Acetyl coenzyme. This pyruvic acid is converted into acetyl coenzyme. ये pyruvic acid क्या होता है? acetyl coenzyme। और उसके बाद acetyl coenzyme के बाद glycolysis process कैरी होता है and then we finally get carbon dioxide and water and ATP। उसके बाद फाइनली क्या होता है? ग्लाइकोलिसिस सॉरी यहाँ पे एसिटिल कोएंजाइम 2 जो मिलता है दैट प्रोसेस यहां तक ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस कंप्लीट होता है। उसके बाद जो सेकंड प्रोसेस स्टार्ट होता है दैट इज क्रेब्स साइकिल। क्रेब्स साइकिल इज आल्सो कॉल्ड एज TCA, ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड cycle, and finally we get CO2 plus H2O plus ATP. These are the molecules of means carbohydrate is totally oxidized to form carbon dioxide, water and ATP molecules. देखो glycolysis process में we get only 2 molecules of ATP, 2 molecules of pyruvic acid, 2 molecules of NADH2, 2 molecules of CO2 and 2 molecules of water. Means we do not get FADH2 in glycolysis process. After glycolysis process, another start the Krebs cycle. मग Krebs cycle में क्या मिलेगा? ATP तो मिलेगा. It is the source of energy. ये तो energy production है.
पहले इफ यू सॉ ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस, यहां तक ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस कैरी होता है. ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस मोस्टली कैरी आउट इन द साइटोप्लाज्म. ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस कहां पे कैरी होता है? साइटोप्लाज्म में कैरी होता है. एंड क्रेब्स साइकिल एंड ETC, electron transfer chain, remaining two processes are carried in mitochondria, because we know mitochondria is the powerhouse of the cell. Mitochondria क्या है? सेल का पावर हाउस है. वो एनर्जी प्रोड्यूस करता है. Therefore, Krebs cycle and ETC, electron transfer chain, both processes are carried out in mitochondria. Glycolysis is operated in साइटोप्लाज्म. यहाँ पे देखो रेस्पिरेशन यू हैव स्टडीड इन अर्लियर स्टैंडर्ड्स अबाउट द रेस्पिरेशन के बारे में अपने अर्लियर स्टैंडर्ड में जानकारी ली है. रेस्पिरेशन इज द प्रोसेस स्टार्ट्स फ्रॉम द नोज, नोस्ट्रिल्स, लैरिंक्स, फेरिनेक्स, लंग्स, ब्रोंचाई, ब्रोंचियोलस, देन लास्ट टर्मिनल एंड ऑफ ब्रोंचियोलस वी कॉल्ड इट एलोलीज. एलोली इज नथिंग बट sac like structure. It provide the surface for respiration, it provide the surface for exchange the gases. यहाँ पे गैसेस एक्सचेंज होता है. therefore respiration is also the process like diffusion. ऑक्सीजन इनटेक होता है, CO2 रिलीज आउट होता है. सेकंड वाला and last part of the human respiratory part, that is diaphragm. वो muscular belt रहता है. relaxation and contraction takes place in diaphragm, and that's why oxygen intake in the lungs and CO2 from the lungs expel out. In this way respiration में गैसेस एक्सचेंज होता है. CO2 अंदर जाता है बॉडी में से, ऑक्सीजन अंदर जाता है, CO2 बाहर निकलता है. उसके बाद यहां तक दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. सपोज कार्बोहाइड्रेट इन दिस वे क्या होता है? ब्रेक डाउन होता है, ऑक्सीडाइज होता है. सपोज कार्बोहाइड्रेट के अलावा सपोज द अनदर न्यूट्रिएंट दैट इज प्रोटीन. कार्बोहाइड्रेट के अलावा another nutrient protein है. That protein is also broken down into amino acid. Protein क्या होता है? Broken down into, first protein is converted into amino acid, and amino acid again converted into acetyl coenzyme. Suppose we have a fat molecule. यहाँ पे मैं लिखता हूँ fat. These fats again converted into fatty acids. First the fat converted into fatty acids, and that fatty acids then into कौन सा भी nutrients हो पहले, that nutrients are converted into corresponding their acids or corresponding factors, and then finally into acetyl coenzyme. And after acetyl coenzyme the second cycle start, that is Krebs cycle. Krebs cycle is a cyclic. It is also called as acetyl coenzyme cycle. And last जो है that is ETC or electron transfer chain. These both cycles, these both process operated in mitochondria. दोनों प्रोसेस कहाँ पे होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में होता है. इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर साइकिल में क्या होता है? व्हाटएवर द ऑल दिस एनर्जी प्रोसेस और एनर्जी फैक्टर्स फोर्सेस, all sources are obtained in electron transfer cycle. And finally दिस इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर साइकिल मैं यहाँ पे लिखता हूँ. एक माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर है. दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया. यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर साइकिल कैरी होता है और यहाँ सरफेस प्रोवाइड होता है, मैट्रिक्स रहता है, फ्लूइड लाइक जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर साइकिल में. वहां पे जो एनर्जी मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस होते हैं, एंड टोटली 34 ATP molecules are produced in इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर साइकिल. आप कंफ्यूज हो गए. इनिशियली सर हैज टोल्ड अस दैट इन एरोबिक रेस्पिरेशन वी गेट 38 ATP मॉलिक्यूल्स. आप थोड़ा कंफ्यूज हो गए होंगे कि पहले मैंने बोला कि एरोबिक रेस्पिरेशन में 38 ATP मॉलिक्यूल्स मिलते हैं. ओके, बट ओनली 34 ATP मॉलिक्यूल्स ऑब्टेन इन इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर साइकिल. वो कैसे बनते हैं? इन दिस इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर साइकिल इस प्रोसेस में क्या होता है? NADH2. There are 3 molecules of, means one NADH2 molecule contains 3 ATP. NADH2 means nicotinamide adenine dinucleotide, and one APDH2 molecule
contains 2 ATP energy molecules. In this way, in this electron transfer cycle, there are 10 NADH2 molecules. इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर साइकिल में NADH2 के कितने मॉलिक्यूल्स रहते हैं? 10 मॉलिक्यूल्स रहते हैं. 10 into 3 means total 30 ATP molecules. Okay, 30 ATP molecules NADH2 से ऑब्टेन होते हैं एंड यहाँ पे 2 FeDH2 मॉलिक्यूल रहते हैं. 2 into 2 means 4 ATP molecules obtained from FeDH2. 30 molecules obtained from NADH2, 4 molecules obtained from FeDH2, 30 plus 4, total 34 ATP molecules are obtained in electron transfer cycle. Electron transfer cycle में कितने? 34 ATP molecules मिलते हैं. यहाँ पे 2 ATP molecules, 2 pyruvic acid, 2 NADH2, 2. Therefore यहाँ पे 2 ATP molecules मिलते हैं. कितना हुआ? A32 और A2 कितना? 34 and A2 36, and in Krebs cycle again we get 2 ATP molecules. Means in the total aerobic respiration जो process है, in the total aerobic respiration process we get 38 ATP molecules. Therefore living thing mostly perform एरोबिक रेस्पिरेशन. अभी अनएरोबिक रेस्पिरेशन, व्हाट इज बाय अनएरोबिक रेस्पिरेशन? विदाउट ऑक्सीजन. यहाँ पे ऑक्सीजन साहब नहीं होते. सपोज इफ वी जर्मिनेट द सीड इन द सॉइल, जब सीड जर्मिनेट किया, दैट सीड अंडरगोज सॉइल, सॉइल के अंदर रहता है. वी सब दैट सॉइल व्हेन वी फिल विद वाटर, सॉइल सबमर्ज इन वाटर, वाटर रहता है, देयरफॉर ऑक्सीजन इज नॉट प्रेजेंट देयर. यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं होता, फिर भी दैट सीड जर्मिनेट, फिर भी वो सीड जर्मिनेट होता है. इन दिस टाइम that seed perform the anaerobic respiration. Similarly, when we do exercise, जब हम एक्सरसाइज करते हैं, एक्सरसाइज करते समय our body require more energy. अपनी बॉडी को एनर्जी की जो जरूरत है वो ज्यादा रहती है. But what exact happen that time? Body produces the less energy. बॉडी को एक्सरसाइज करते समय एनर्जी की जरूरत ज्यादा है, मगर बॉडी एनर्जी लेस प्रोड्यूस करती है. That's why whatever the lactic acid in our body, it accumulates. वो कलेक्ट हो जाता है, वो accumulate हो जाता है, and due to accumulation of lactic acid, we get tired. We feel tired. हमें एक्सरसाइज करते समय थोड़ा टायर लगता है, वीक लगता है, थोड़ा अनतंदुरुस्त लगता है, हम जल्दी रुक जाते हैं. Why? Because while exercise, our body require more energy, but that time मसल सेल जो होते हैं वो कम एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, लेस एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं. एंड दैट्स व्हाई अपने मसल सेल में, अपने बॉडी में जो लैक्टिक एसिड होता है वो एक्यूमुलेट हो जाता है, एंड इसकी वजह से वी फील टायर्ड ड्यूरिंग द एक्सरसाइज. मींस वहां पे अपने मसल सेल्स क्या करते हैं? अनएरोबिक रेस्पिरेशन परफॉर्म करते हैं. एंड दैट्स व्हाई अनएरोबिक रेस्पिरेशन से जो एनर्जी मॉलिक्यूल है वो कम रिलीज होते हैं. दिस वे, this is the very important topic for 5 marks. You will get the correct the process of aerobic respiration. ये जो डायग्राम है वो डायग्राम तुम्हें करेक्ट करने के लिए 3 to 5 मार्क्स के लिए एक्सप्लेनेशन एंड और डायग्राम करेक्ट करने के लिए पूछा जा सकता है बोर्ड के एग्जाम में. इन दिस वे राइट डाउन इट वेरी केयरफुली. ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, वो केयरफुली राइट डाउन करो, नोट डाउन करने का. उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर, सॉरी, इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल continue the next topic, cell division. very important topic है सेल डिवीजन. वो सेल डिवीजन के जो 4 टाइप्स है, माइटोसिस के 4 टाइप्स, वो हम नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करने वाले डिटेल में. थैंक यू.